چھری دے تھلے بھی رکھے تے سیدھی کرے گا. رانا صاحب اس صلہ کتوں ملیا؟ ان اصل نقطہ دے پوچھنے والا ہے نا کہ اجے پتر آیا نہیں تے اللہ صفت بھی کہہ دیتی کہ انج دا دواں گا نارجمنک وَأَدُرِّمَنِيَا. اے ابراہیم میں تینوں پتھر مارا گا، سنسار کرا گا، کروں کر دواں گا. تو کہنا یا آباتی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ. ابا جی جنہاں دے تسی پوجا کردے جے، جنہاں دے تسی نبی گن گاندے جے، جنہاں دے نام تے نظر نیاز تے چڑھاوے چاہتے، اے آزر اے جناب کہہ رہے ہیں اے نمرود دنیا جو کچھ نہیں کر سکتا، اے بت دنیا جو کچھ نہیں کر سکتے، اے بت دنیا جو کچھ نہیں کر سکتے. حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ حضرات نقطہ سنے. اے پتر ملیا نہیں، اللہ صلہ کی دیتا ہے. دیکھو رب کتنی بڑی صفت ہے. اوتھے کہہ رہے ہیں بڑے بڑے جملے نے آندے ابراہیم تو مینوں کہنا ہے اللہ تو علاوہ کسی نو پوجنا نہیں. ان شرک لظلم عظیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ نے مشرک جنت حرام کر دیتی ہے. بت پرست نے سنو ابراہیم دا باپ بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے تے بت تراش بھی ہے. اور سان کرام بت بناوندا بھی ہے، بت ویچدا بھی ہے تے بت پوجدا بھی ہے. ایک کی عقل ماری ہوئے گی ہتھاں نال مٹی کو کے ہتھی بت بنا کے پھر انہیں اپنا رب مان لینا، یہ آنکھاں دی نشانی ہے. بابا جی کہنے لگے ابا جی جنہاں تسی پوجدے جے اے تے نہ کھاندے نے نہ پیندے نے، نہ سن سکدے نے نہ ویکھ سکدے نے. حضرات مشرک ہون واسطے بے وقوف ہونا ضروری ہے. جی بولو مشرک ہون واسطے بے وقوف ہونا ضروری ہے. اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت تراش کے بولو بھئی جدے نئے نقش بھی آپ بنائے تے مکھی بھی نہیں لا سکتا تے دس بھی نہیں سکتا کہ میں ماریا کہ نہیں. بابا جی نے نا ان کی عقل چیک کی، انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے پتاں کسی کا کان وڈیا، کسی اکھ کٹی، کسی کا نک وڈیا. ساری قوم کا ساری دے نک وڈی چاہے وہ بولو ساری دے ساری دے نہیں. پوری دنیا دا امریکہ ماما سان دھمکیاں دے سیف ثابت بھی ہو گیا ہے، پھر اس کہنے نہیں کچھ بھی. وہ سانو تے بھائی اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیڑی بوٹی سکھا دیتی گئی ہے. ساڈا زمین چلدا ہی صرف بکرا لین لگیا جاندا ہے ایک کلو ہوئے اوتھے ساڈی اپنا جاندا نالے دے لاکھ کے ہاتھ رکھی جان گے نالے پوچھ جان کہ کلو ہے بھی تم اللہ دے راہ تے دینا ہے تینوں کلو کچھ دی لوڑ پاوے 50 کلو ہے پر 20 کلو تو ریٹ پوچھ تے انہاں نال پوچھدا کر کے سونا رکھا تے جڑے راج ٹھاک ملدے نے وہ کیا کتنا لے آئے اوندا 10,000 دا 20 دا 30 دا 40 دا تے ٹھگیا گیا بھی ٹھگیا نہ نہیں کر جوا کھیل کے انہیں اللہ دے نام تے بکرا لے آئے پاوے 50,000 دا لے پاوے 40 دا لے 60 دا لے انہیں تے اسے اللہ دے دربار وچ پیش کرتے ہیں وہ تے قبول ہو گئے. وہ تے قبول ہو گئے جدوں انہیں اپنی جیب چوں کڈ کے دے دتے. مگر اسی کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اسی کی کہتے ہیں تجھے ٹھگیا گیا مہنگے پڑا سگو دعا دینی چاہیے اللہ تعالیٰ قبول کرے. آج وعدہ کرو جدو قربانی دے جانور کو لے کے انہوں کی کہنا اللہ تعالیٰ قبول کرے. تے جدو تو قبول کرے تے اللہ بھی آسمان تے اعلان کر دو انشاءاللہ تم یہ دے قربانی دے گوشت وصول کرے. ایک تے وصول ہوتا ہے 1 لاکھ ساسو 1 لاکھ سوریاں 1 لاکھ سانو 1 لاکھ بیلیو تے چربی تے پسلیاں تے بیبیاں وڈ قربانی دا گوشت تے چربی بھی کھانی چاہیے. تے میں کہا اس چربی تیری کڑمی نوں نہیں لگدی اس سوریاں نہیں لگدی کڑما نہیں لگدی. حضرات چنگا گوشت اپنے وصول تے جنہاں دی وجہ تو قبول ہونا ہے انہاں نوں پسلیاں وصول. صحیح گل کر رہے نا صاحب جنہ غریباں دی وجہ تو قبول ہونی قربانی انہاں نوں بولو بھئی آئے نے فتح بیٹھے ہوتا ہے چو میں تم 100 روپیہ نہ
है, कोई दस मैं पूरी बकरे की रान किसी गरीब तो गरीब बंदे आप क्या गया पूरी रात लै क्या सके भरा भी इन्नियां कोटियां पग देते मैं यार पहले माड़े बैठा तू लै जाए। अच्छा कई बंद के घरों ही गोश्त आता ना तो कसमें लभ्या भी बिचों चंगी रोटी नहीं लगती तो फिर कर कहते कसाई खराब कर गया कसाई बकरा बनाया बकरा तो अल्लाह ने बनाया जिथे अल्लाह को चर्बी की लोड़ सी अल्लाह ने चर्बी लाई जिथे कोठी की लोड़ सी कोठी लाई जिथे हड्डी की लोड़ सी हड्डी लाई जो अल्लाह ने सारिया चीज़ा मिक्स की तू वक्रिया वक्रिया क्यों कर जाओ तुम सारे दिया फ्रिजा टाकी शाकी बचन दई बोलो टाकी शाकी बचन दई है सर्विस हो गई ने फ्रिजा ते जनाब ई तो पहले बिल्कुल खाली ते फिर महीने बाद अल्लाह माफ करे मसले पूछने लोग जी कुर्बानी का गोश्त कितनी देर खाना चाहिए मां जितनी देर तुम मारना चाहो खाते ही रहना चाहिए। हज़रात कुर्बानी करो ते तुसी ते सारा साल खाते ही मुल लैके माड़ियां नूं खवाओ गरीबां नूं खवाओ कोई नहीं रबता मौलवी नूं खवाओ। हज़रत एक आदमी दिन ने मैनूं कहा पत्नी साहब मेरे घर फ्रिज नहीं सी ते मैं सिर्फ 3 दिन ही गोश्त खाता भी किसी की फ्रिज लगाया तो मेरे चौथे दिन फोन आ गया मौलवी ये सारी फ्रिज जी है ना खराब हो गई है तुम गोश्त लै जाओ। मैं क्या उन्होंने कह देना सी फ्रिज नहीं खराब हुई ਤੁਹਾਡਾ अंदर वाले खराब हो गया ये मेरे पाइया गोश्त पैना फ्रिज खराब हो गई। हज़रात असी किसी का गोश्त नहीं गरीब का रख सकते 3 दिन वास्ते असी की कर सकते फ्रिज हर बंदे को तो नहीं ना होंगी तो अगर जिनी बिजली महंगी हो तो चलाने दिल ही नहीं करता जिनी बिजली महंगी हो फ्रिजा कौन चलाए कई गरीब बेचारे फ्रिजा नहीं चलाते असी नहीं चलाते। तो आज ये दर्शे कुरान का मकसद है कि आगे कुर्बानी आ रही है तो नासर मदनी है वो सारी चीज़ा बना दे ऐसा करना की मौलवी के काश सारे ना सारी चीज़ों डिस्कस कर ला अपन ते लोग इंशाल्लाह सीधे हो जाए इनकलाब वाले तो जिंदगी जितने ईमान वाले मेरे चन मकन आए कसमें दिल जित लिया तुसां इन्नी मुहब्बत ना तुसी गर्मी दे विच भी सुनना है जे ईमान ताजा अल्लाह राजी होए इदा मतलब अल्लाह को रात मानी ते ले बाबा जी इब्राहिम ने किस दा नक काट दिता के दे कान हां हां सुनिए मुशरिकीन ते मबूदा दे नक ला दिता किसी दे बोल कर देते केदा कान लाता केदा गोडा लाता केदा गिट्टा ला दिता कदी लाती तोड़ देती ते जेड़ा सब तो तगड़ा सी जेड़ा सब तो बड़ा तगड़ा ट्रैम्प जेड़ा सब तो बड़ा बुत सी उन्हां दा महमूद उन्हां मोढे ते कुहाड़ा बाबा जी ने रखिया ते वाह इब्राहिम तेरी दनाई तो कुर्बान जावां सारा खाना इकट्ठा करके बड़े पुत के रख दिता ताकि आके वेखन ते आखन खान तो लड़ पैने बड़े ने सारे को खो के अपने बेड़ा कराया ते दूजियां दा बेड़ा कर देखो दनाई है पैगंबर दी दनाई कैसी सारा खाना इकट्ठा करके उन्होंने दे रखता एदा मतलब है उन्होंने आउंदियां सोचना चाहिए सी ना जेड़े अपनी हिफाजत नहीं कर सकते साडियां हाजतां किवें पूरीआं कर सकते पर मुशरक होने दी बेवकूफ होना जरूरी है। हाँ हाँ पंजाबी च कह लो मुशरक बड़ा करो वे एडा बड़ा झूठ है जिवें कीड़ी नूं कहो ऊठ है बोलो जिवें कीड़ी नूं कहो उन्होंने तो चाहिए सी ना आन के कहते कि यार जेड़े अपनी हिफाजत नहीं कर सकते उन्हें साडी हिफाजत नहीं करनी बल्कि उठाते साढ़े रब्बा नाल बड़ी ज़्यादती होगी बड़ी ज़्यादती होगी हाँ हाँ बड़ा जुर्म हो गया बड़ा ही जुल्म हो गया कितना जुल्म हो गया बड़ा बड़ा जुर्म जी साढ़े रब्बा नूं कोई मार गया वाह वाह कोई मार गया कोई और जिन्हों कोई मार जो रब हो सकता सारे बोलो जिन्हों कोई मार जो रब हो सकता नहीं हो सकता। अल्लाह वहदा शरीफ ने क्या है वास्ता करने वाला मैं मेरा दुआ मंगया कर अल्लाहुम्मा मग़फ़िरना व इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन। अल्लाह पाक दियां पनाह मंगया कर ये कैसी शान है इब्राहिम नबी ने उन्हें अकल चेक कीती बोलो एक नहर के किनारे बह गए बाबा जी इब्राहिम एक
ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਪੀ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪੀਂਦੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੀਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਟੁੱਪੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਖੜਾ ਸੀ ਬੇਵਾ ਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਗੋਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਕੁੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੋ, ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾਏ ਨਾ, ਮਾਂ ਧੱਫਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਲੈ ਜਾਵੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਉਸਤਾਦ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈਟ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, साढ़े मुल्क के कानून ने सदर सरदारी को कितना आराम दिता है। उन्होंने कहा जी सरदारी साहब जब तक जिंदा है इन्होंने कोई नहीं पूछ सकता। तो मैं मौलवी ने कहना अल्लाह का वास्ता है इस्तिस्ना की मुखालफत ना करया करो। सारी जिंदगी असी जी दुआ मंगीए या अल्लाह सानू बिना साहब तो जन्नत दे। जे असी बिना साहब तो जन्नत बढ़ना चाहते तो जे वो बिना साहब तो पाकिस्तान रह लन तो उन्होंने जन्नत तो पाकिस्तान में अगे तो लभनी कोई नहीं। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਥ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਥ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਥ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਸਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਮੰਨਣਾ। हाजत रवा अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करने वाला है। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने अपने अल्लाह को कैसे पहचाना, जब मैं राता कुछ करता हूँ तो हो कुछ जाता है, मुझे समझ आके इरादे पूरे करने वाली बहुत सारी बस की। और आज तौहीद समझने की बहुत ज़रूरत है भाई। अकीदा तौहीद पे पूरे इस्लाम की नबी इमारत खड़ी। अगर हम अल्लाह को नहीं समझेंगे तो हमारी ये इमारत गिर जाएगी। अल्लाह को समझे, उसके नबी को समझे, दीन इस्लाम को समझे, आले बैत को समझे, सहाबे रसूल को समझे, अज़वाज रसूल को समझे। हज़रात क्या शान है मुस्तफ़ा का कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेज के साडी मुद्दा तो जान छड़ा के बोला सी हिंदुस्तान चो आए पाकिस्तान साडे बड़े भी जेडे बुत परस्ती सन चौथी पीढ़ी बोल लो तक वागू वागू तरावरा नहीं होना। हाँ बुत परस्ती वो इत्थे आके नहीं असीं टलदे, गड्डियां नाल टाकियां बनी फिरदे। मैं एक बंदे नूं कहा भी टाकी को बनी ऐ नज़र नहीं लगदी, मैं अंग्रेज जहाज बना के ढाई फिरदे ने, उन्हां कदी जहाज नूं टाकी नहीं बनी, उतरिया तो कार नूं टाकी बनी फिरना। आ कार नूं टाकी बनी फिरदे ने, काली टाकी पीछे लटकदी, कईयां जुत्ती लटकाई होंदी। मैं कईयां नूं पूछा कि जुत्ती को लटकाई, कहते जी एक चित्तर से लटकाता। मैं कहा नज़र नहीं लगती। मैं कहा हर शहर का जोड़ा बनाया, ये जुत्ती कितों नहीं तू एक आंदा जोड़ा ही नहीं। मैं कहा एक लिया, कहता क्यों, मैं तेरे घर च पावां ये ना बहुत सोहना, तू मैनू लगदा कि तेनू नज़र ना लग एक तू घर च पा ला। आदा सुभान बोले घर जुत्ती पै गई, आदा सुभान बहुत सोचा करो मौलवी कह भी रहा। मैं तुम समझाया बोलो भी नजरे बद होंदी है पर बोलो ओदा इलाज अल्लाह दे हबीब ने दसी। आ कालियां टाकियां च ओदा इलाज नहीं, मिर्चा साड़न च ओदा आ कई बीबियां बच्चे बच्चियां नजर लगे वो मिर्चा साड़न लग पैंदियां फटकरी साड़। मैं जहाज च ना सफर कर रहा, एक लड़की जहाज च होस्टस सी, उन्हें देखा बदली साहब, मैं मिंबर से बैठा झूठ मारा फर्क हो जाए। उन्हें ना मैंने कहा जी आप फटकरी कर दो ये वो। मैं क्यों, मेरे बच्चे को नजर हो जाती है। तो मैंने कहा मदनी साहब मैं दान करा लूँ। मैं कहा भैना ये फटकरियाँ नजर नहीं खत्म होती, जब तू आप पढ़ फातिहा कुल बीमारा दारू दाफे कुल बनाई सूरत फातिहा पढ़ ला, अल्लाह मन्ना जालू कफील हो रही मनाउस भी कबल शुरूरियम ये पढ़ ला, कुल बिन फलक पढ़ ला, नास पढ़ ला, नजरे बातियां तमामा पढ़ के भूख मारिया कर, पंजे मारा पढ़ के अल्लाह पाक कोई किसी की नजर नहीं लगेगी। ते कहती मैंने तो लोग मिर्चा साड़ के ते चित्र सत मारिया कर। मैं कहूँ आप बचने ने तेन भी यहो कोई दसदा और एक ऐसा दाम है मिर्चा साड़ के सत चित्र मारने। यार कैसे लोग फटकरी साड़ो ऐसी वह पुत बन जाता है। आगे को कैसा ड्रामा करते रहे जो तोहमत परस्त है ना, कहते फटकरी साड़ो
ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜੂ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਭੁੱਖੜਾ ਬਣ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੱਚ ਤਰਪਾਓ। ना कुरान च लिखे है ना हदीस च लिखे है, जेड़े बस मर्जी लाई। भाई कलमा पढ़ के भी हमने लोगों से पूछना है, पूछना तो मुस्तफा को। मैं तर्जमा ये करना बड़े प्यार नाल, जिंदी किस्मत विच कुरान ते हदीस हो गए, बख्शे रब ने रोना संजोईद हो गई। अल्लाह जिन्ने बैठे ने कुरान हदीस किस्मत च कर दे। मेरा नबी की लेके आए सवा लाख पैगंबर विचों रब वखरी शान आए, हर लफल शरीफ बनया जद सोने ने ज़बान हलाए। जदों मेरा 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 पीर जदों भी बोले तौहीद ते मोती रोले, सोना गल उदों से करदा जदों दा सी हुक्म इलाही। सवा लाख पैगंबर विचों रब वखरी शान आए। रात लोकां नूं जंतर मंतर ना दसो, छू मंतर ना दसो, फटकरियां ना दसो, मंचा ना दसो, हालात लोकां नूं मर्जा ना दसो, लोकां नूं दम दसो जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा ने अपने सहाबा नूं दस्सिया है, वो दीन दसो जेड़ा मुस्तफा नूं दसो। लोकां मैं लिख के दे सकदा है खालस दुध इस दौर विच टोटी दी बाल्टी ते गहरी चोरी लभेगा। खालस दुध लभना है किसे दुकान तो जाके नहीं लभेगा। खालस दुध इस दौर च शक तो बिना लभना है, मद दे थान विचों लभना है, और खालस दीन मुहम्मद दी ज़बान खालस दीन हजूर दी ज़बान च लभदा। अरशाद पट्टी मेरे नाल पॉडकास्ट कर रहा सी ते पट्टी साहब मैनूं कह रहे सन कि मदनी साहब ये सारी चीज़ें कहाँ से बयान होनी चाहिए। मैं कहा अगर तौहीन रिसालत का मसला हो तो फतवा एक मसलक के मौलवी से नहीं लेना चाहिए, चार मसलकों से भी नहीं लेना चाहिए। हर मसलक तो कहता मेरी बात मानो। मैं क्या पूरी दुनिया के आलम इकट्ठे किए जान, हर मुल्क का एक शैखुल हदीस बड़ा आलम होता मुफ्ती, उन्होंने बिठा के वो फतवा दें तो फिर तौहीन साबित होती। पूरी उम्मत मुसलमान जिस तरह के मरज़ियों को काफिर करार दिया, पूरी उम्मत मुसलमान ने फतवा दिया। तो भाई अगर एक एक ग्रोह किसी को गुस्ताख रसूल कहेगा मुल्क कैसे चलेगा। बोले ना अगर एक ग्रोह किसी को गुस्ताख कहता है तो दूसरा तो कहेगा मैं बेवकूफ। मैं कहता हूँ खुदा हर मसले का अल्लाह ने अपने नबी के फरमान में हाथ में रखा है, कुरान हदीस को अपना है। आज कितने दोस्त है वहाँ में जो अपने अपने ग्रोह को ही सिर्फ हक समझते हैं। नासिर मदनी इस मिंबर पे बैठ के कहता है हक वो ये जो आमना की जुबान से निकला है, जो आमना दे नाल की जुबान से निकले है, हक वो जो मुस्तफा की जुबान से निकला है। आज कितने मुसलमान बैठे बाबा जी इब्राहिम को अल्लाह ने सिला के देता है, सुनो पुत्रो तानु बाप नहीं कहता है तेरा मैं निपटता है तो तू बाप को सीधा हो जाना है, ओदे कमरे च नहीं जाता, ना गल नहीं करता। अब एक किडी कड़वी गल बाप करना चाहिए लाल जुमन्ना का माजुर दी मनिया इब्राहिम मैं पत्थर मारांगा, संसार करांगा, तेनू करम कर दवांगा। जे तेरे मेरे वर्गे इब्राहिम होंदे कहते मैं तानु थाने ले जावांगा, कचहरी ले जावांगा, मैं तेरे नाल पंगा पावांगा, तेरे यारां च बिस्त करांगा, तेरे बेरियां च पावांगा, जिथे तू बैठना है उत्थे तेरे खिलाफ लोग बड़ा करांगा। हज़रत इब्राहिम नबी कहते अब्बा जी दुआरे वास्ते रहन, जिथे भी मैं रवांगा मेरे वालों तानु ठंडियां हवावां आउणगियां, कदी अपने मुंह ते शिकवा भी नहीं सुनोगे। वाह मौला ऐसा पुत्र मैनू एक दिता है, अल्लाह एक दा बना दे, अल्लाह जिन्ना जिन्ना कोल पुत्र ने एक दे बना दे। कदी बाप दियां अखां च सोना दे लफ्ज़ ना लैके और लोकां दियां तलवारां बाप नहीं लवा सकदियां, पुत्रा दी ज़बान दुश्मन दी तलवार बंदे नूं नहीं लवा सकदी, दुश्मन दी गोली बंदे नूं नहीं लवा सकदी। अपनी ढिड दी जमी औलाद बाप नूं मरन ते मजबूर कर देंदी, जिंदा लाश
देंदी। लोगों मैं दुनिया च सब तो बड़ा हथियार ज़बान वेखिए, जिहड़ी तुसी ज़बान बाप ते मां ते चला दित्ती, किसे हस्पताल दे ICU च भी सेहत नहीं मिल सकती। मां बाप दे जख्म कैंसर बन जाते। हाय मैं जिस पुत्र को बोलना सिखाया, जो पुत्र मेरे ते ज़बान वही। ये जितनी आपको बयान सुने ये समझते हैं, ये समझते हैं। सुनिए जरा ध्यान से, सारी दुनिया ज़बान नाल बंदे नूं सतावे, बंदे नहीं रोंदे, पर के ज़बान ने जवाब देंदे नहीं। मगर औलाद दी ज़बान अगे बाप चुप हो जाता है। बोले भी ते किवें बोले, जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा थे। दिल के पफोले चालू गए सीने के ताप से, इस घर को आग लगी करके चिराग से। जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निकाह मुस्लिम नहीं तो कुछ। मेरे बच्चों जिन्हें कुर्बानी करनी बुजुर्गाने, पहले तरीका सीखो, सीरत इब्राहिम सीखो, सीरत इस्माइल सीखो। बाप कहता मैं पत्थर मारांगा, घरों कर दवांगा। छिड़कना भी नहीं, मारना भी नहीं, ओह भी नहीं कहना। हाय हाय बड़ा बड़ा जुमला है। अल्लाह ने क्या इब्राहिम जे ऐडी वड्डी गल सुन के बाप अगे सीधी की दी ते आवे मैं भी तेरे इस तरह दा पुत्र दवांगा। बशरनाहु बिगुलामिन हलीम, मैं पुत्र ही इस तरह दा दवांगा जे गर्दन ते छुरी भी रखे ते सीख नहीं करेगा। एक दिन आप सुनिए ध्यान नाल, मैं जुमला कहांगा। बाप दा जिगरा कितना वड्डा हुंदा है। वाल बाप तेरे करम नवाज़े, या बाप नूं जिगरे दिते। कदी ममिया कोई तारी ना देवे, इन्हें जहाज़ी ना ला दिते। एक महीना कराया ना दइए, लोगा बर्तन पार न सुटे। लख मंगया कोई तारा ना देवे, इन्हें बैंकी ना ला दिते। अल्लाह ने दिते मैं सी पाले, मैं सारे लाड लडाए। जिस शहर दे पुत हाथ सी रखदा, मैं सारे चाला दिते। बुढ़ा होया जिस दम बाबर, पुत्रा मंजा कुएं ते डाया। कट करके जद पुत्र लग्या, कलेजा कटन नूं आया। जा पुत्रा सुखी च वसे, असां लिखिया चोली पाया। जो सोचिया सी ताडे बारे, तुसां मुल नहीं पाया। लठा लावे ते खतर पावे, इन्हें मथे वट नहीं पाया। आखर मोया जिस दम लोको, पुत्रा रौला पाया। लख लगा जे मरने ते बीवी हिस्सा आया। चार कमियां चाहला पुत्रा, इस सखी दा मुले पाया। जिन्हें मां नूं रवाया, उन्हें अर्श हलाया। दिल प्यो दा दकाया, उन्हें सुख नहीं पाया। भावे खोल के कुरान के अंदर रहमान, लेकिन नबी सुल्तान फरमान वकरा। शान सब दी यारो आपो अपनी, पर मापिया दा शान वकरा वकरा, मापिया दा शान वकरा। जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाया, भुलावा को जिन्ना तेनू बोल कढ़ाया। धुप्पा विच तेरी छां बन जांदे ने, तेरी विच तेरी दवार बन जांदे ने। मींह विच तेरी छत बन जांदे ने, किल विच तेरी सुख बन जांदे ने। दुखां विच तेरे सुख बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। अज मुल नहीं पाया, मंजा भूए अगे डाया। नाकी डंगरां दी पाया, तेनू शर्म न आया। बच्ची ने ऐवें कराया, तेनू लाड़ा बनाया। जितने ये मेरे दोस्त बाप है, कौन कहता दीनी तलीम रुकावट है। बच्चों को पहले दीनी
अपनी तरीफ दिलाओ। मैं खुदा के लिए हाथ जोड़ता हूँ। 7वीं क्लास के बच्चे बिगड़ने शुरू हो गए हैं। 7वीं तो पहले पहले बच्चों मदरसे दाखिल कराओ। 7 से 5 12 कितने साल की दरस निज़ामी होता है इधर? दरस निज़ामी क्लास कितने साल? 5 साल। 5 साल में दरस निज़ामी मिसाल के तौर पे 7 साल जो बच्चा 7वीं में पढ़ रहा है, 13 से 14 साल उसकी उम्र है, और 14 5 19 साल तक बच्चा हिफज करके मेरे मोहम्मद अरबी वाला एमए कर देगा। और दुनिया च 7-7 एमए कराना है। आए दुनिया बनाने वास्ते एक एमए मेरे मोहम्मद वाला करा ते अपना फरमा बरदार बनाने वास्ते। वो माँ बाप कितने आमक हैं जो 6-6 7-7 8-8 एमए कराते हैं। मैं लिख के देता हूँ, ये लामा इत्तिसाम नहीं सही, ये लामा इशाम नहीं सही। अपनी माँ का फरमा बरदार क्यों? ये अपने वालिदैन का जिक्र आज तक क्यों करते? 1987 में लामा साहब शहीद हो गए, मगर लामा इत्तिसाम की ज़बान पे आज तक मेरे बाबा ने यूं कहा, मादी अशाम की ज़बान पे मेरे बाबा ने यूं कहा, और तुम पास बैठे बाप का जिक्र अपनी ज़बान पे मिलाते। ये आलमे दीन किसने सिखाया? मैं लिख के देता हूँ, ये लामा बरादरान ने, नबी तहसील बरादरान ने 25-30 एमए किए हो, उनकी कोई हैसियत नहीं। वो जो पहले एमए मोहम्मद मुस्तफ़ा वाला किया ना, उस एमए ने उनको सारी दुनिया का बड़ी बाप अदब बना दिया। आप बताएं, मैं जहाँ खड़े होकर बात पूछने लगा, सबने मेंशन करना, मुझसे सवाल है आपके आगे। 10 एमए बंदे ने किए, उसे गाना कड़े ना बंदे अंदर बनाते एमए करूँ नहीं की। जे एमए मुस्तफा वाला किया होवे ना, आप दीन पढ़िया है, तेरे कहते मैं दीन पढ़ लूँ, तेरे अकल नहीं है कि दीन पढ़िया बोलता क्यों है? ਇਹਦਾ मतलब लोगों को समझे अदब दीन सिखाता है। बोलो अदब दीन। हाँ, जिन्ना मजमा है ना, अपने बच्चे दाखिल कराओ, पहला एमए मुस्तफा वाला कराओ। पाकिस्तान च कानून है जेड़ा 5 साल इन्होंने पढ़ जाएगा एमए की संद मिल जाएगी। दरस निज़ामी 5 साल तक करो। मेरा एक बेटा है तो सुन ले, एक मेरा बेटा, तो मैंने उसको बोला बेटा ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ, ये मेरा पैसा माल फैक्ट्री, ये सब कुछ आपका है, तब जब आप एमए करोगे मुस्तफ़ा वाला। पहला एमए बस, बाकी जिन्ने एमए करेगा पैसा भी दवांगा, गड्डियाँ भी दवांगा। ते जे तू मुस्तफ़ा वाला एमए ना कीता ते मेरे पर तेन कुछ नहीं लभना, मैं लखवी साहब के नाल आ गया। हाँ जी, लखवी साहब एक गल कही है,